Hello everyone, welcome to Aether Institute. I'm Aditya Singh and I'm delighted to have you join our Geography Standard Book series. So, geography is much more than memorizing facts. It's about understanding the Earth's processes and their relevance to society, the environment, and even current affairs. So in this and every session, we will build concepts step by step using standard books and an exam oriented approach. So let's get started with today's topic. Okay. So the next chapter that we are starting today is the soils of India. Very, very important and pertinent topic with regards to your UPSC preparation. Okay. So let's begin. So first of all, the question arises, what is the soil? So we are beginning from the scratch and then we'll take you towards advanced topics. But first of all, what is soil? So soil is primarily the thin uppermost layer of the earth's crust. And I am sure you must be well aware of the fact that earth comprises of a core, a mantle. So inside you have a core, you have a mantle, and then outside you have a crust. And even in that crust, the outermost, the thin uppermost layer of the Earth's crust comprises of your soil. And how is it formed? It is formed through the process of pedogenesis. Do remember this term. Directly, this term has been asked in your state exams. What is pedogenesis? Simple. So it is around your soil formation. So soil comprises of your mineral particles. Okay. So these mineral particles are derived from what? They are derived from the weathered rocks. So earlier on, if you look at the soil structure, at the bottom you have your ekdam solid, your solid rocks. Then these rocks, they start disintegrating in situ और फिर ये rocks they start weathering. ठीक है, they start weathering and eventually they lead to the formation of your soil. So इसमें जो mineral particles होते हैं, है ना, जो भी mineral particles होते हैं, you have to remember this. Soil के जो mineral particles होते हैं वो those are primarily derived from those weathered rocks. यही जो rocks weather कर गए वहीं से आपके derive होते हैं mineral particles. ठीक. इसके अलावा सॉइल में होता है ऑर्गेनिक मैटर. इस ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं हम ह्यूमस. ठीक है, ये जनरली एकदम टॉप लेयर में होता है आपका ह्यूमस, द ए लेयर. सॉइल की जो ए लेयर होती है उसी कहते हैं ह्यूमस. यही होता है ऑर्गेनिक मैटर. और क्या क्या सॉइल में होता है? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपका वाटर, आपका एयर, सॉइल वाटर. तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपके सॉइल में. ठीक है. कैसे बनता है सॉइल? कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. सो सॉइल एकदम से नहीं बना है कि आज आपने चाहा और आज तुरंत फटाक से सॉइल बन जाएगा. ठीक है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, 1000 साल लगभग लगते हैं. तो और कौन कौन से फैक्टर्स इस पे एक्ट करते हैं? जितने भी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से नेचुरल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में. और सॉइल की बात करें तो ये बहुत वेरी करता है अक्रॉस इंडिया. क्यों? इंडिया में मतलब अलग अलग इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का सॉइल है. क्यों? क्योंकि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जियोलॉजी अलग अलग है. अलग अलग रीजन्स में इंडिया के क्लाइमेट अलग अलग है, रिलीफ अलग है, वेजिटेशन अलग है. जब ये सारे फैक्टर्स अलग हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग रीजन में जो सॉइल फॉर्म होगा वो भी अलग अलग होगा. ठीक है. तो ये रीजन है, इसकी वजह से एक इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्यों सॉइल इंपॉर्टेंट है? दूसरा सवाल ये आता है हमसे, क्यों सॉइल इतना जरूरी है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सबसे डोमिनेंट फैक्टर है क्यों हमारा सॉइल इंपॉर्टेंट है. ठीक है.
तो एग्रीकल्चर डिपेंड करता है आपका सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, सॉइल फर्टिलिटी पे डायरेक्टली। जितनी ज्यादा सॉइल फर्टाइल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, जितना ज्यादा फर्टिलिटी होगी। और ये डिटरमाइन करेगी कि क्रॉप कितना प्रोडक्टिव है ना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कितनी है। कि लेट्स से 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में लेट्स से एक्स टन ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है ना। और सेम एक और 1 हेक्टेयर लैंड है ना, जिसमें लेट्स से एक्स प्लस 10 टन्स ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है। तो ये चीज क्या रिफ्लेक्ट करती है, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स, नॉर्मल कंडीशंस में कीपिंग ऑल अदर कंडीशन सेम, ये रिफ्लेक्ट करती है कि ये वाला जो प्लॉट ऑफ लैंड है ये ज्यादा क्या है, फर्टाइल है। फर्टाइल है ना, हमने बाकी सारी कंडीशन सेम रखी है, एग्जैक्ट सेम दो लैंड लिए हैं, एग्जैक्ट सेम लैंड नहीं लिए हैं। एक लैंड ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा फर्टाइल होगा तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी उस रीजन में ज्यादा होगी, सिंपल। तो एग्रीकल्चर किस तरीके से डिटरमाइन करता है, आपका डिपेंड करता है सॉइल फर्टिलिटी पे। सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका जो सॉइल होता है ये इन्फ्लुएंस करता है आपके सेटलमेंट पैटर्न्स को, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फर्टाइल लैंड होगा उतना ही ज्यादा वो डेंस पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उनके लिए वहां एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, वहां पे वो खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहां है ये, इस वजह से वो उस रीजन में जाना प्रेफर करेंगे। इसीलिए हमने देखा है कि जो फर्टिलिटी है, लेट्स से अगर हम इंडिया का पोर्शन देखें, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, तो बिहार बिहार में इतनी सबसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में क्यों है, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर रीजंस, है ना। बिहार हैज बीन अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाया है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आता है सॉइल पे, सॉइल पे। ठीक है, यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बहुत हाई है। क्यों सॉइल फर्टिलिटी हाई है? क्योंकि इसका जो फ्लड प्लेन है ना, वो फ्रेश अलूवियम वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाता है हर साल। जैसे हर साल आपके मॉनसून सीजन आता है, आपका पूरे फ्लड प्लेन में फ्रेश अलूवियम डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार का जो सॉइल है वहां की फर्टिलिटी जनरली हाई रहती है। ठीक है, पहली चीज इस वजह से, क्योंकि फर्टिलिटी हाई है, एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल ज्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट्स वहां पे ज्यादा है, इस वजह से हिस्टोरिकली एंशियंट टाइम से वहां पे पॉपुलेशन इनफ्लक्स लगातार बनता रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन की पैटर्न्स को भी इंफ्लुएंस करता है आपका सॉइल, आपके सेटलमेंट पैटर्न्स को। थर्ड, ये सपोर्ट करता है आपके फॉरेस्ट को, आपकी बायोडाइवर्सिटी को और आपके इकोसिस्टम को भी अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, जिस तरीके का सॉइल होगा उस तरीके के लेट्स से ग्रासेस डेवलप होंगी, ग्रासेस डेवलप होंगी तो वहां पे जो ग्रास ईटिंग आपके हर्बीवोर्स आएंगे वो डेवलप होंगे, हर्बीवोर्स होंगे तो वहां पे उसके ऊपर वाले कार्निवोर्स होंगे, उसके प्रेडेटर्स होंगे, प्रे होंगे। तो पूरा का पूरा एक फूड चेन डेवलप होगा, पूरा का पूरा ग्रेजुअली इकोसिस्टम डेवलप होता है, एंड दैट डिपेंड्स solely, if not solely but primarily on soil। ठीक है, फोर्थ फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है सॉइल, फूड सिक्योरिटी। डायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है सॉइल पे, तो आपकी डायरेक्टली इंडिया की फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली यहां से एसोसिएटेड है। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.5 बिलियन है ना, 150 करोड़ जनसंख्या। इनके लिए फूड सिक्योरिटी एक बहुत मेजर इशू है ना, अफोर्डेबल फूड, एक्सेसिबल फूड, है ना, फूड अवेलेबिलिटी, ये सब इंश्योर कर पाना तभी पॉसिबल है इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ सॉइल। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ आर्ग्यूमेंट why soil is important। फिफ्थ पॉइंट, फर्टाइल अलूवियल सॉइल जो आपके गंगा प्लेन में है वो सपोर्ट करते हैं डेंस पॉपुलेशन और इंटेंसिव एग्रीकल्चर। हम देख पाते हैं कि जो नॉर्दर्न गंगा प्लेन्स है वहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट शैलो कोर्स सॉइल। ठीक है, जो शैलो कोर्स सॉइल्स होते हैं जैसे तेलंगाना के और राजस्थान के, वो वहां पे देखा जा रहा है जनरली बहुत ही कम पॉपुलेशन है,
तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी वाला पूरा आर्ग्यूमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। जितना ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगा उतना ही ज्यादा वहां पे लोग एग्लोमरेट, वहां पे इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन। तो जो इंडियन सॉइल्स हैं वो एक्सट्रीमली डाइवर्स हैं। क्यों एक्सट्रीमली डाइवर्स हैं? वही सेम बात, क्यों डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है इंडियन सॉइल में? क्योंकि इंडिया की जियोलॉजी, इंडिया की पूरे अक्रॉस इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग जियोलॉजी है। अलग अलग इंडिया के रीजन्स में अलग अलग रिलीफ पैटर्न्स हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट है, पेरेंट रॉक अलग है, वेजिटेशन अलग है। इन सब फैक्टर्स की मल्टीप्लिसिटी को एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों सॉइल्स में इतनी डाइवर्सिटी है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर parent material. So the original rock from which soil develops. Okay. First and foremost factor which is very important and pertinent is with regards to your parent material. Okay. Why? Because it is the parent material which decides a lot of components of soil, like the mineral composition. We have just seen the mineral composition to a large extent is decided by the parent material. The color, the pH, all these factors to a large extent are decided by the parent material. Then you have relief or your topography. What do you mean by relief and topography? So the slope या एलिवेशन। क्यों स्लोप और एलिवेशन? आपका जो स्लोप होता है या एलिवेशन होता है ये कंट्रोल करता है आपके रेट ऑफ इरोजन को और रेट ऑफ डेपोजिशन को। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, अगर लेट से आपके स्टीप स्लोप है, आपकी स्टीप स्लोप है, तो इस वाले एरिया में है ना जो स्लोप होगी यहाँ पे रेट ऑफ इरोजन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा है। तो कौन सा एक एडिशनल फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एडेड वर्क करेगा जिसकी वजह से है ना इस डायरेक्शन में आपका रेट ऑफ इरोजन ज्यादा होगा, आपका सॉइल इरोजन, आपका वाटर इरोजन, विंड इरोजन सब ज्यादा होगा। वहीं अगर स्लोप है ना कम है, स्लोप बहुत कम है, तो यहाँ पे रादर देन इरोजन व्हाट यू विल विटनेस इज डेपोजिशन। यहाँ पे डेपोजिशन होगा अगर स्लोप है ना कम है। जितनी ज्यादा स्लोप, जितनी ज्यादा स्टीप स्लोप उतना ज्यादा रेट ऑफ इरोजन, जितनी कम स्लोप उतना ज्यादा रेट ऑफ डेपोजिशन। ठीक है। तो सॉइल, तो जैसे अगर इसी की बात करें तो यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल मैच्योरिटी की बात करें, सॉइल प्रोफाइल मैच्योर कहाँ होगी, ज्यादा डेप्थ कहाँ पे होगी? तो जहां पे स्लोप कम होगा वहां पे सॉइल प्रोफाइल मैच्योर ज्यादा होगी। वहीं जहां पे स्लोप स्टीप होगा वहां पे आपकी जो स्लोप सॉइल प्रोफाइल मैच्योरिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से रिलीफ और टोपोग्राफी सॉइल पीडोजेनेसिस में, सॉइल की जो पीडोजेनेसिस होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज क्लाइमेट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको इग्नोर मत करिएगा। मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ही डिटरमाइन करता है वेदरिंग। क्लाइमेट ही कितना आपका जो रॉक है वहां पे वेदर हो रहा है, कितना लीचिंग हो रही है, कितना ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब डिटरमाइन करेगा क्लाइमेट। फॉर इंस्टेंस लीचिंग कहाँ होगी? लीचिंग कहाँ होगी? जब आपका टेम्परेचर ह्यूमिड होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर ह्यूमिड होगा आपका रेनफॉल का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, तभी जाके आपका लीचिंग प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, वेदरिंग में किस टाइप की वेदरिंग होगी ये डिटरमाइन करेगा क्लाइमेट। ठीक है, आपकी फिजिकल वेदरिंग हो रही है कि केमिकल वेदरिंग? लेट्स से आपका एरिड क्लाइमेट है, तो एरिड क्लाइमेट में आपकी फिजिकल वेदरिंग ज्यादा होती है। वहीं अगर लेट्स से ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वहां पे केमिकल वेदरिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो बहुत सारे क्लाइमेट के मल्टीपल सेट ऑफ फैक्टर्स
डिटरमाइन कि किस तरीके से सॉइल फॉर्म होता है ना, नेचर ऑफ सॉइल क्या होता है, एंड ऑब्वियसली ह्यूमस फॉर्मेशन। ठीक है, आपका सिंपल इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, ह्यूमस फॉर्मेशन किस तरीके से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स जो आते हैं बेसिकली, जो जिनके लिए ऑप्शनल्स है उनके लिए ये ध्यान रखना है कि जो बेसिकली पांच फैक्टर्स होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। पांच फैक्टर्स, ये किसने स्कीम दी थी? ये बहुत फेमस स्कीम है, ये दी थी जेंकिंस, एक यूएस के थे पीडोलॉजिस्ट, और एक रशियन पीडोलॉजिस्ट थे डोकुचेव, डाकू मत समझिएगा, डोकुचेव एंड ग्लाइंका। ठीक है, ये रशियन पीडोलॉजिस्ट थे, ये एक यूएस, इन्होंने स्कीम दी थी कि कौन कौन से फैक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं आपका पीडोजेनेसिस में। तो आपका हो गया पहला फैक्टर आपका पेरेंट मटेरियल, दूसरा रिलीफ टोपोग्राफी, थर्ड क्लाइमेट, और चौथा हो गया, ये चौथा एक कंबाइन करके एक फैक्टर हो गया बायोटा। बायोटा, ठीक है, आपका नेचुरल वेजिटेशन, ऑर्गेनिज्म और इवन ह्यूमन एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन कंट्रीब्यूट करती है आपका ऑर्गेनिक मैटर और आपका ह्यूमस। बिना अगर ऑर्गेनिक मैटर, लेट्स से अगर लीव्स, है ना, लीव्स नहीं गिरेंगी या वहां पे कोई वहां पे कुछ वेस्ट मटेरियल नहीं होगा तो वो डीकंपोज नहीं होगा। जब वो डीकंपोज ही नहीं होगा तो आपका ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे होगा, ह्यूमिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है, डफ फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके बारे में और भी बात करेंगे। बट सिंपली नेचुरल वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में। ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हो गए, आपके इंसेक्ट्स हो गए, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, ये सब एड करते हैं डीकंपोजिशन। कितना इफेक्टिव डिकम्पोजिशन होगा ये डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके के एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं, एंड इवन योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द बैक्टीरिया, द वायरसेस दैट द सॉइल विल हैव, है ना, वो डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। और इवन दो इनकी एक्टिविटी विल आल्सो डिपेंड ऑन क्लाइमेट, बट दे आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अभी के लिए, अभी की जो एंथ्रोपोजेनिक एरा चल रही है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी सॉइल उसमें। ठीक है, किसी भी सॉइल डाइवर्सिटी में ह्यूमन एक्टिविटी, मैन हैज बिकम द मोस्ट डोमिनेंट एजेंट। आपका बाकी सारे एजेंट से सबसे डोमिनेंट, क्योंकि जो मैन होता है, ह्यूमंस होते हैं, वो बहुत तेजी से, बहुत रैपिड रेट से पीडोजेनेसिस में इंपैक्ट ला सकते हैं, कम कर सकते हैं, इवन सपोर्ट कर सकते हैं। बट मोर ऑफन देन नॉट इट हैज बीन विटनेस्ड that the human activities have a degrading effect on the soil formation. This is where the things become very concerning. जैसे कि आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, किस तरीके का आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। अगर आप ओवर इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपका जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स वापस नहीं रीजेनरेट कर पाएगा विद इन लिमिटेड सेट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का टाइप डिपेंड करता है। डिफॉरेस्टेशन, आपने जंगल ही काट दिए, ठीक है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा सॉइल, क्योंकि जैसे ही आपने जंगल काटे तो क्या होगा, आपका वाटर इरोजन, वाटर की स्पीड बढ़ जाएगी, जो रन ऑफ वाटर होता है सरफेस पे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वाटर इरोजन बढ़ जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वाटर इरोजन बढ़ जाएगा, एयर के थ्रू जो इरोजन होता है वो बढ़ जाएगा। इवन जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको जो पेड़ के रूट्स होते हैं उसको बाइंड करके रखते हैं सॉइल पार्टिकल्स, अब वो उसे बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इजीली जो ऊपर का सॉइल है अब वो आसानी से डिस्प्लेस किया जा सकता है, तो सॉइल इरोजन का रेट बढ़ जाएगा अगर आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, इरिगेशन भी आपका मॉडिफाई करता है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे करता है? लेट्स से ओवर इरिगेशन कर दिया, ठीक है, ओवर इरिगेशन कर दिया है इन एरिड क्लाइमेट, ठीक है, तो वहां पे एक अलग प्रोसेस चलेगा जिसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो साइड के जो एरियाज हैं, कैनाल के जो साइड के एरियाज हैं, वहां पे सॉल्ट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे सोडिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं एक सेकंड में बता देता हूं। एक सेकंड। हम्म, सो लेट्स से इसको अभी यहीं पे समझ लेते हैं कि अगर लेट्स से ये आपका कैनाल है, ठीक है, ये आपका कैनाल है, यहाँ पे आपका कैनाल है, ठीक है, साइड में आपका लैंड है मान लें,
अब यहाँ पे जनरली देखा गया है मोस्ट ऑफ द कैनाल इन इंडिया आर अनलाइंड। अनलाइंड मतलब ये जो यहाँ पे लेयर है ये परमिएबल है, ये जो ये है यहाँ से वाटर पास कर सकता है। तो होता क्या है, यहाँ से वाटर यहाँ अंदर की तरफ साइड वाले एरिया में पास कर जाता है, ठीक है, इधर की तरफ मूव कर जाता है। अब ये जो वाटर और मॉइस्चर मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एरिड रीजन है, एरिड रीजन है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन इवेपोरेशन एक्सीड करती है किसको, प्रेसिपिटेशन को। जब इवेपोरेशन ज्यादा होती है प्रेसिपिटेशन से, तब यहाँ पे जनरली एक विटनेस करते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन विटनेस किया जाता है सॉइल में। कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन मतलब ये बेसिकली लीचिंग का एकदम ऑपोजिट है। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो आपका मॉइस्चर है वो ऊपर मूव कर जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है। और यही जो मिनरल सॉल्ट्स होती हैं फिर ये साइड वाले रीजन में आके एक्यूमुलेट हो जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर जाती हैं और ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक लेयर ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट हो गई एडजेसेंट एरियाज में। क्योंकि एक सॉल्ट लेयर डिपॉजिट हो गई, ये आसपास के रीजन्स की जो फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस कर देती है, फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देती है। ये जो लेट्स से सॉल्ट की लेयर, सोडियम की लेयर मान लें, अगर सोडियम एक सॉल्ट है उसकी लेयर एक डिपॉजिट हो जाएगी तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी तो आपका फूड सिक्योरिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, आपका महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका पूरा इकोनॉमिक सेटअप बिगड़ जाएगा। तो किस तरीके से पूरा चेन ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ वन स्टूपिड मूव, ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स हमने बता दिए सॉइल फॉर्मेशन में। आपका वेजिटेशन, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को ही तो डिकम्पोज करते हैं और यही डिटरमाइन करते हैं ह्यूमस कंटेंट। जैसे कि एक फेमस एग्जांपल है चर्नोजेम्स। क्यों काला है, क्योंकि उसका ह्यूमस कंटेंट बहुत हाई है, उसका कलर जो है चर्नोजेम्स का, आगे हम देखेंगे, ठीक है। बरोइंग एनिमल्स हैं बहुत सारे, जैसे कि रैबिट्स हो गया, रैट्स हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, ये सॉइल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं। और ह्यूमंस तो सबसे इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो वेदरिंग के रेट को एक्सेलरेट करते हैं, इरोजन रेट्स को बढ़ाते हैं, और जो नेटिव बायोटा होता है उसको पूरा, उसमें पूरा कंप्लीट चेंजेस ला रहे हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए। बट एक पांचवा फैक्टर जरूर मेंशन करिएगा जिसके बारे में जनरली बात नहीं होती है, वो है टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या डिटरमाइन करेगा, टाइम ये डिटरमाइन करेगा डेप्थ ऑफ सॉइल, डेप्थ ऑफ सॉइल और मैच्योरिटी ऑफ इट्स होराइजन। मैच्योरिटी, कितना सॉइल मैच्योर है, ये डिटरमाइन होगा बेस्ड ऑन टाइम, कितना ज्यादा टाइम से सॉइल फॉर्म हो रहा है। तो अगर बात करें तो लगभग 500 साल लगते हैं, ऑन एन एवरेज बात करें लगभग 500 साल लगते हैं। अगर 2.5 सेंटीमीटर, सिर्फ और सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर की टॉप सॉइल अगर आपको बनाना है तो 500 साल लग जाएंगे। इस वजह से ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो जो यंगर सॉइल होते हैं ज्यादातर रिजेंबल करते हैं आपका, अगर कोई यंग सॉइल होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा किसकी तरफ होंगी, पेरेंट मटेरियल की तरफ होंगी। बट जैसे जैसे सॉइल एज करता है, एज होती जाती है ना, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, उसमें मॉइस्चर ऐड होता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं जिसकी वजह से उसका फीचर्स चेंज होते हैं और धीरे धीरे वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं पेरेंट मटेरियल की उससे मूव अवे कर जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर मल्टीपल सेट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। आई होप पीडोजेनेसिस का पूरा आंसर आप इसमें से निकाल सकते हो, इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सो पेरेंट मटेरियल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज योर पेरेंट मटेरियल, द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर। क्यों, क्या होता है पेरेंट मटेरियल, सबसे पहली चीज ये ओरिजिनल रॉक होता है जहां से सॉइल डेवलप करना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या डिटरमाइन करता है, ये आपका कलर डिटरमाइन करता है, किस कलर का होगा। अभी एक एक एग्जांपल के थ्रू बताते रहेंगे। मिनरल कॉम्पोजिशन, सॉइल के मिनरल्स क्या होंगे, सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, कोर्स टेक्सचर होगा कि फाइन टेक्सचर होगा, ठीक है।
लेट्स से कोर्स होगा कि फाइन होगा, ये सब डिटरमाइंड होता है। फर्टिलिटी कैसी होगी, all these different set of soil factors are determined based on parent material। और हमने ये एक बात और डिस्कस की थी कि जितना ज्यादा आपकी पेरेंट मटेरियल, आपका जितना ज्यादा यंग सॉइल होगा उतना ही ज्यादा वो पेरेंट मटेरियल को रिजेंबल करेगा, और जितना ज्यादा पुराना सॉइल होगा वो मल्टीपल अदर सेट ऑफ फैक्टर्स को रिजेंबल करेगा। तो जब जैसे कि बात करें, अगर एंशियंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक जब होते हैं, जैसे कि आपके ग्रेनाइट हो गए, नीस हो गए, सिस्ट हो गए, इन सब में क्या रिच होता है, इसमें आयरन रिच होता है। ठीक है, तो जब ये डिसइंटीग्रेट करते हैं, ये इनकी वेदरिंग होती है, तो क्या फॉर्म करते हैं, आपके रेड सॉइल्स। जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, वहीं अगर कडप्पा या विंध्यन रॉक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कैल्सीरियस मटेरियल होता है, तो ये जब वेदर करते हैं तो कैल्सीरियस और आर्गिलेशियस सॉइल बनाते हैं। आर्गिलेशियस, ये टर्म ध्यान रखिएगा, आर्गिलेशियस। आर्गिलेशियस इज एसोसिएटेड विद क्लेई टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोंडवाना रॉक्स जब आएंगे, है ना, तो ये प्रोड्यूस करेंगे कंपेरेटिवली आपके इमैच्योर सॉइल्स, जिनका टेक्सचर यूनिफॉर्म होगा बट फर्टिलिटी लो होगी। ठीक है, इमेच्योर होंगे, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि फर्टिलिटी लो है। ठीक है, वहीं अगर आपके डेक्कन ट्रैप बसाल्ट्स होते हैं, डेक्कन ट्रैप्स, है ना, ये हम देख चुके हैं पहले सेशंस में, एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड होते हैं आपके डेक्कन ट्रैप्स। तो जब भी डेक्कन ट्रैप्स की बात आएगी तो दीज आर रिच इन टाइटेनियम, मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और इनकी वेदरिंग से क्या प्रोड्यूस होता है, ब्लैक सॉइल रेगुर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्लैक सॉइल और रेगुर किससे प्रोड्यूस होता है, जब वेदरिंग होती है आपके डेक्कन ट्रैप बसाल्ट से। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आपका प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाए, इवन मल्टीपल टाइम्स मेंस में भी पूछा जा चुका है, अराउंड ब्लैक सॉइल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल इन टर्म्स ऑफ योर सिविल सर्विसेज। ठीक है, और यहीं जब बात करें टर्शरी और मोज़ेक, आपके मेसोजोइक, सॉरी मेसोजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, तो ये पोरस और इमेच्योर सॉइल प्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं। जबकि रीसेंट या सब रीसेंट डिपॉजिट जब भी होते हैं, उनकी वेदरिंग से आपके बनते हैं एलुवियल सॉइल्स। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल्स आर रिलेटिवली लेस मेच्योर एज कंपेयर टू ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स बहुत ही ज्यादा मेच्योर होते हैं। ठीक है, जबकि एलुवियल सॉइल्स की प्रोफाइल बहुत यंग है, सो दे हैव यंग प्रोफाइल। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन सॉइल्स कैसे बनते हैं, ये ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन के होते हैं, फाइन सिल्टी और बहुत ही फर्टाइल। जबकि पेनिनसुलर सॉइल्स बहुत ही, है ना, वो रेसिडुअल होते हैं और ज्यादा कोर्सर टेक्सचर के होते हैं। तो कोर्सर टेक्सचर होता है कहाँ पे, पेनिनसुलर। जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों फाइन सेडिमेंट, क्यों फाइन जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर फाइन क्यों होता है, क्योंकि लेट्स से ये बन कैसे रहे, यहां से लेट्स से कोई रिवर आई, तो यहाँ पे इरोड करते हुए गई, और जो फाइनर सेडिमेंट्स थे यहाँ पे पूरा इस प्लेन में जाके डिपॉजिट हो गए। ठीक है, जो अलूवियम था वो जाके आगे जो बल्ज था उसमें जाके डिपॉजिट हो गया, एंड दिस फॉर्म्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये कौन से ओरिजिन के हैं, ये ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन के हैं। जो रिवर्स यहाँ पे माउंटेन्स और हिली रीजन्स में वेदरिंग कर रही हैं, उनको फर्दर वो रिवर्स कैरी कर रही हैं, एंड दे आर डिपॉजिटिंग इट इन द बल्ज, है ना। इसी को, इस जो बल्ज है इसको वैसे कहते हैं फोर डीप। ठीक है, फोर डीप, ये बल्ज कैसे आया था, ये हम टेक्टोनिक्स में डिस्कशन में कर चुके हैं। जब इंडियन प्लेट कोलाइड की थी किससे, यूरेशियन प्लेट से, फिर उसका जो अंडर थ्रस्टिंग हुई थी तो नीचे एक तरीके का फोर डीप क्रिएट हो गया था। तो इस तरीके से फोर डीप क्रिएट हुआ, फिर उस फोर डीप में एलुवियम डिपॉजिट होने लगा विच इज ऑफ ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन। आई होप you are able to realize the significance of parent rock. Okay, so parent rock, आपका जो parent material है, it is the initial state of the solid matter making up a soil। सबसे पहला state होता है, सबसे initial state होता है आपका soil formation में। It determines your mineral composition, it determines your texture, it determines the stratification of soil profile, इट डिटरमाइंस द बेस कंटेंट, द कलर ऑफ सॉइल। जैसे कि अगर बात करें, यहीं पे हमने देखा था ग्रेनाइट, ग्रेनाइट डिसइंटीग्रेट करेगा तो किस कलर का देगा,
आपको एक रेड कलर्ड सॉइल देगा, रेड कलर्ड सॉइल, ठीक है। और ये रेड कलर्ड सॉइल किस चीज में रिच है? आपका फेरो मैग्नीशियन सिलिकेट में रिच है, ठीक है, फेरो मैग्नीशियन सिलिकेट में रिच है। और अगर बात करें जैसे कि बसाल्ट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बसाल्ट का भी, है ना, ये डेक्कन ट्रैप बसाल्ट की बात कर रहे हैं। बसाल्ट ये किस तरीके का कलर देता है? ये ब्लैक, ये ब्लैक सॉइल होता है, ये ब्लैक कलर देता है, ठीक है। वन सेकेंड। तो ये ब्लैक कलर देता है, क्यों ब्लैक कलर देता है? क्योंकि इसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ मैग्नेटाइट होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ मैग्नेटाइट। क्या होता है मैग्नेटाइट? Fe3O4, जस्ट मेंशनिंग इट। बट ये ध्यान रखना कि मैग्नेटाइट की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, ना कि ह्यूमस की वजह से। ह्यूमस भी काला कलर देता है, ब्लैक कलर देता है, बट बसाल्ट का, डेक्कन ट्रैप बसाल्ट की वजह से जो रेगुड़ सॉइल बन रहा है, ब्लैक सॉइल बन रहा है, उसका काला कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइट। इसके अलावा आपका पेरेंट मटेरियल डिसाइड करता है मिनरल्स को, आपकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है। जैसे कि लाइमस्टोन फॉर्म करते हैं कैल्शियम रिच सॉइल, अभी हमने देखा था, ठीक है। ये जो कडप्पा और विंध्यन रॉक्स हैं, ये जनरली कौन से रॉक्स हैं? यहाँ पे, यहाँ लाइमस्टोन रॉक्स हैं। और जब भी ये लाइमस्टोन रॉक्स डिसइंटीग्रेट करते हैं तो क्या देते हैं? कैल्शियम रिच सॉइल्स, कैल्शियम रिच सॉइल्स। कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स आपका देंगे कैल्शियम रिच सॉइल्स। और आपका पेरेंट मटेरियल क्या डिसाइड करता है? एसिडिटी डिसाइड करता है, पीएच डिसाइड करता है, टेक्सचर, ठीक है। और अभी हमने देखा टेक्सचर डिसाइड करता है। वन सेकेंड। ठीक है, टेक्सचर की हम बार बार बात कर चुके हैं कि आपका पेरेंट रॉक डिसाइड करता है किस तरीके का टेक्सचर होगा, और टेक्सचर डिसाइड करता है क्या? कि कितनी सॉइल की पोरोसिटी होगी, कितनी सॉइल की परमिबिलिटी होगी, ठीक है। दोनों में अंतर समझिएगा। परमेबिलिटी, पोरोसिटी मतलब कितना पोरस है, ठीक है, ठीक है। जबकि परमेबिलिटी क्या होती है? कि अबिलिटी टू अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इट, या एनी लिक्विड टू पास थ्रू इट। मतलब जितना ज्यादा परमिएबल सॉइल होगा, उतना ज्यादा वो वाटर या किसी लिक्विड को अलाउ करेगा अपने अंदर से पास होने के लिए। सिंपल, ठीक है। नाम से पता चल रहा है परमेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा सॉइल से नीचे की तरफ वाटर पास कर पाएगा, ठीक है। तो ये टेक्सचर से डिसाइड होती है आपकी पोरोसिटी और परमेबिलिटी। और टेक्सचर किस चीज से डिसाइड होता है? आपका पेरेंट रॉक से। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इन सब चीजों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मोरोवर, टेक्सचर की बात करें तो जैसे सैंड स्टोन, अगर पेरेंट मटेरियल में सैंड स्टोन है, तो सैंड स्टोन क्या देगा? किस तरीके का? एक कोर्स टेक्सचर देता है, ठीक है। वहीं अगर पेरेंट मटेरियल में शेल रॉक है, शेल रॉक है, तो वो किस तरीके का टेक्सचर देगा? फाइन टेक्सचर सॉइल देगा, ठीक है। तो आई होप इसमें पूरे डिस्कशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका रिलीफ, टोपोग्राफी और क्लाइमेट। रिलीफ टोपोग्राफी एक सेट ऑफ फैक्टर्स और दूसरा क्लाइमेट। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीफ। सिंपल, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज्यादा स्लोप स्टीप होगा, जितना ज्यादा स्टीप स्लोप होगा, उतना ही ज्यादा रन ऑफ ज्यादा होगा, है ना। रन ऑफ मतलब वाटर, उसके सपोज ये है ना, जितना ज्यादा स्टीप स्लोप होगा, उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा स्टीप होगा, उतना ही ज्यादा रन ऑफ स्पीड, रन ऑफ स्पीड ऑफ वाटर उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ही ज्यादा स्पीड पानी की ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा इरोजन होगा, उतना ही ज्यादा इरोजन होगा। जितना ही ज्यादा इरोजन होगा, उतना ही थिन सॉइल होगा, ठीक है, उतना ही थिन सॉइल हो गया। तो पूरी एक लॉजिकल चेन है। इसका उल्टा कर ले, अगर स्लोप स्टीप नहीं, स्लैंट एकदम वो है ना, बहुत कम है स्लोप, तो स्पीड ऑफ वाटर ना के बराबर होगा। स्पीड ऑफ वाटर ना के बराबर, तो इरोजन तो होगा ही नहीं, रादर डेपोजिशन होगा, वहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे, तो वहां पे थिक सॉइल फॉर्म होगा, ठीक है। इसी वजह से आपके जैसे बात करें
चंबल रेवाइंस के हालांकि और भी रीजन है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टीप स्लोप्स, और भी क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। आप इसके अच्छा एग्जांपल्स आप मेंशन करते हैं, हिमालयन सॉइल्स हो गए, या स्लोप पे जो सॉइल्स होते हैं वो जनरली थिन सॉइल होते हैं, ठीक है। जेंटल स्लोप्स या प्लेन्स होंगी तो वहां पे क्या होगा, आपका डेपोजिशन डोमिनेट करेगा, ठीक है, डेपोजिशन, इस वजह से वहां पे फर्टाइल सॉइल्स होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, आपके जो जितने रिवर वैलीज होते हैं वहां पे आपका डीप और फर्टाइल सॉइल्स होंगे, क्योंकि वहां पे डेपोजिशन डोमिनेट कर रहा है, वहां इरोजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कहां पे है, जहां स्लोप्स जेंटल हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेट ऑफ फैक्टर आता है आपका क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेंट फैक्टर है, बहुत डोमिनेंट फैक्टर है। तो क्लाइमेट की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर हैवी रेनफॉल होगी, आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा, लीचिंग, ठीक है। लीचिंग, क्यों लीचिंग, लीचिंग क्या होता है ना, सपोज ये आपका सॉइल है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल होती हैं, तो बारिश बहुत ज्यादा होगी, ह्यूमिड कंडीशंस होंगी, तो यहाँ पे लेट्स से बहुत सारे ऊपर वाले टॉप सॉइल में आपके बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स होंगे, जैसे कि लेट्स से आपका आयरन, एल्यूमिनियम, आपके सिलिकेट्स बहुत सारे होंगे। तो ये आपके जो मिनरल्स होंगे, पर्टिकुलरली सिलिकेट्स, ये नीचे मूव कर जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर के इन्फ्लुएंस में ये पानी के साथ साथ आपके नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऊपर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ, नीचे सब सॉइल में मूव कर जाएंगे, नीचे सब सॉइल में मूव कर जाएंगे। इसी को, ये जो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल, इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ लीचिंग। जैसे कैपिलरी एक्शन में इसका जस्ट उल्टा था, नीचे से ऊपर, यहाँ ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, आपके जो सॉल्ट्स होंगे नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आपके सॉल्ट्स, आपके जो बेसेस हैं, है ना, वो नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा, आयरन और एल्यूमिनियम के लेट्स से सेस्की ऑक्साइड, ठीक है, तो ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, आयरन ऑक्साइड्स ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से, क्योंकि ऊपर आयरन है, आयरन के कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड है, तो कलर क्या होगा, रेड कलर होगा, रेड। और आपके किस तरीके के सॉइल बनेंगे, लीचिंग प्रोसेस से जो सॉइल डेवलप होते हैं उन्हें कहते हैं हम लैटेराइट सॉइल। ये ध्यान रखिएगा, लीचिंग प्रोसेस से मेनली जो मोस्ट डोमिनेंट सॉइल आपका डेवलप हो रहा है दैट इज लैटेराइट सॉइल। और लैटेराइट सॉइल फर्टाइल नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से बेसिस तो हट गए, अब ऊपर बचा क्या है, ऊपर बचा है आपके आयरन और एल्यूमिनियम, इनके सेस्की ऑक्साइड्स। तो ये सब बेस नहीं है, ये सब क्या करेंगे, ये सब आपको ये इनहिबिट करेंगे फर्दर यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को, ठीक है। और वहीं अगर बात करें, आपका एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट है, ठीक है, एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट हमने जस्ट अभी देखा था कि ऐसा क्लाइमेट जहां एवापोरेशन एवापोरेशन एक्सीड करती है रेनफॉल को, तो इससे क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, न्यूट्रिएंट्स लीचिंग में ऊपर से नीचे मूव कर रहे थे आपके बेसिस, यहां बेसिस नीचे से ऊपर मूव करेंगे, तो बेसिस ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जैसे कि लाइम, लाइम की एक लेयर, अभी हमने जस्ट कैनाल का एग्जांपल देखा था, तो लाइम की लेयर एक एक्यूमुलेट हो जाएगी, और कलर क्या होगा, लाइट कलर्ड पेडोकैल सॉइल्स, है ना, राजस्थान में ये ऐसे लाइट कलर्ड पेडोकैल सॉइल्स बहुत ही फेमस है, ठीक। फिर बात करें अगर कोल्ड हिमालयन क्लाइमेट की, कोल्ड हिमालयन क्लाइमेट, अब क्योंकि कोल्ड है, ठंडा है, यहाँ पे क्या है, कोल्ड है, तो जब भी एनवायरनमेंट आपका कोल्ड होगा, ठंडा होगा, तो डीकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं कर पाएंगे, लॉजिकल बेसिक साइंस, ठीक है, जितना ज्यादा ठंडा एनवायरनमेंट होता है उतना ही ज्यादा डीकम्पोजिशन रेट कम होता है। जैसे कि अगर आप कोई बॉडी लेट्स से हिमालय या क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर ले जाके रख दें, तो वो एक फ्रीजिंग कंडीशंस में आ जाएगी, वो अब डीकम्पोज नहीं होती है। अभी भी बहुत सारी एक स्पेसिफिक एक बॉडी पड़ी हुई है आपका माउंट एवरेस्ट के ऑलमोस्ट क्लोज टू द पीक, है ना, वो एज इट इज बहुत सालों से, 30-40 सालों से पड़ी हुई। अभी कुछ साल पहले एक और न्यूज आई थी, अंटार्कटिका या आर्कटिक के अराउंड एक साइंटिस्ट थे, वो 60-70 साल पहले वहां पे रिसर्च करने गए थे, 60 साल पहले लगभग,
अभी तक उनकी लाश अब निकाली गई है एज इट इज इंटैक्ट, ठीक है, उसमें कोई भी इतना सा भी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। तो एकदम लॉजिकल चीज है कि जितना ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट होगा, जितना ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होगा, उतना ही स्लो डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, और जितना ही ज्यादा स्लो डिकम्पोजिशन होगा उतना ही सॉइल क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो की कंसेप्ट क्या है, क्लाइमेट कैन ओवरराइड पेरेंट रॉक, सेम ग्रेनाइट प्रोड्यूसेस लैटराइट इन ह्यूमिड क्लाइमेट बट नॉट लैटराइट इन ड्राई क्लाइमेट। तो एक ही ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट से आपका लैटराइट भी बन सकता है अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है, और नॉन लैटराइट भी बन सकता है अगर ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है। आई होप यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक टर्म होता है ना, अभी यहीं पे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, एक टर्म आता है आस्पेक्ट, इसको भी यही मेंशन कर देता हूं। आस्पेक्ट क्या होता है, ये होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, डायरेक्शन ऑफ द स्लोप रिलेटिव टू सन, रिलेटिव टू सन। सिंपल सा मतलब ये है कि जो माउंटेन रेंज की स्लोप है, क्या वो सन को फेस कर रही है, सन के ऑपोजिट है, बस इतना होता है एस्पेक्ट, ठीक है। मान लेते हैं सपोज ये है हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ है, और हमारा इधर है आपका सन, ठीक है, ये है आपका सन, और यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपके हैं हिमालय, ठीक है, ये इक्वेटर, और यहाँ पे पड़ गए आपके हिमालय, एक सेकंड, ठीक। तो ये है आपके हिमालय। तो ये वाली जो साइड होगी, जो सदर्न साइड है हिमालय की, जो सदर्न साइड है हिमालय की, ये डायरेक्टली किसके इन्फ्लुएंस में है, सन के इन्फ्लुएंस में, है ना। और इधर वाली जो तिब्बत साइड है, इधर तिब्बत है, तिब्बत वाली साइड सन से दूर है, ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट होता है, एस्पेक्ट डायरेक्शन ऑफ द स्लोप रिलेटिव टू द सन, ये डिटरमाइन करता है द अमाउंट ऑफ वाटर दैट मूव्स थ्रू द सॉइल। तो जैसे कि आपकी जो साउथ फेसिंग स्लोप्स होंगी, ये साउथ, ये वाली साइड सदर्न फेसिंग स्लोप्स होंगी या साउथ एस्पेक्ट, वो जनरली क्या होंगी, गर्म होंगी, वार्मर होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, गर्म होगी या वार्म होंगी, और जल्दी से जल्दी वो ड्राई आउट कर जाएंगी। क्यों ड्राई आउट कर जाएंगी, क्योंकि ये सन की हीट को डायरेक्टली फेस कर रही हैं, और ये ज्यादा सोलर हीट फेस कर रही हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स या नॉर्थ एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये भी आपका डिटरमाइन करता है क्या, सॉइल जेनेसिस, ठीक है, ये भी आपका डिटरमाइन करेगा सॉइल जेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या पीडोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा गर्म टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन तेज होंगी, ठीक है, जितना ज्यादा वार्म टेम्परेचर होगा उतनी ही तेजी से आपकी केमिकल रिएक्शन आपकी एक्ट करेंगी, ठीक है, जितनी तेजी से केमिकल रिएक्शन आपकी ऐड करेंगी, मोरओवर आपका इवेपोरेशन रेट भी हाई रहेगा, ठीक है, आपकी सॉइल प्रोफाइल का, ठीक है। तो ये मल्टीपल सेट ऑफ फैक्टर्स हैं, कैसे एस्पेक्ट आपका डिटरमाइन करता है आपके सॉइल प्रोफाइल को, ठीक है। क्लाइमेट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव एजेंट है ना। ज्योग्राफी में इसकी स्कीम है मार्बर्ट स्कीम, ठीक है। जैसे कि बात करें ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब प्रेसिपिटेशन होती है, जो बारिश होती है, वो कंट्रोल करती है अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अदर केमिकल कंपाउंड्स की, ठीक है, कि कितना बारिश हो रही है ये डिटरमाइन करेगी कि कितने न्यूट्रिएंट्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ठीक है। यही प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के अब दो टाइप होते हैं, आपका कैपिलरी एक्शन हो सकता है या तो लीचिंग होता है, ठीक। कैपिलरी एक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कैपिलरी एक्शन कहां डोमिनेट करता है, ये इस वाले रीजन में, एरिड और सेमी एरिड में, यहां पे डोमिनेट करेगा कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन ड्राई एरियाज में डोमिनेट करेगा, जहां इवेपोरेशन एक्सीड करेगी रेनफॉल को, इवेपोरेशन ज्यादा होगी रेनफॉल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैपिलरी एक्शन होगा एरिड रीजन्स में, जबकि लीचिंग कहाँ पे होगा, जहां रेनफॉल ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो क्लाइमेट किस तरीके से आपका सॉइल फॉर्मेशन डिटरमाइन करता है, रेनफॉल और टेम्परेचर भी डिटरमाइन करती है। रेनफॉल और टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करती है,
ये तो लीचिंग के अलावा एक और चीज, रेट ऑफ वेदरिंग। ठीक है, रेट ऑफ वेदरिंग, टाइप ऑफ वेदरिंग, ये डिटरमाइन करती है आपका रेनफॉल और आपका टेम्परेचर। ठीक है, वेदरिंग किस चीज की वेदरिंग, आपके पेरेंट रॉक की वेदरिंग। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर सीपिंग थ्रू, ठीक है, कितना पानी पास हो रहा है ये भी डिटरमाइन करता है। आपका रेनफॉल और टेम्परेचर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिटरमाइन करता है, ये भी हमने देखा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्दर आपका सॉइल फॉर्मेशन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें फिजिकल वेदरिंग की, लाइक फ्रॉस्ट वेजिंग, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने जब रीड करोगे अपनी एनसीईआरटीज और अपनी गोची लियो, तब आपको समझ में आएगा ये चीज। जब भी फिजिकल वेदरिंग होती है, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग, जैसे कि अगर फिजिकल वेदरिंग की बात करें, जैसे कि फ्रॉस्ट वेजिंग, फ्रॉस्ट वेजिंग, ये कहां पे होगी, फिजिकल वेदरिंग कहां पे होगी, कोल्ड एनवायरनमेंट में होती है फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर, एक सेकेंड, हम्म, और अगर बात करें केमिकल वेदरिंग की, केमिकल वेदरिंग, तो केमिकल वेदरिंग कौन कौन सी केमिकल वेदरिंग होती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, जैसे कि ऑक्सीडेशन, जैसे कि रिडक्शन, जैसे कि हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये सब कहां पे केमिकल वेदरिंग कहां से एसोसिएटेड है, वेटर रीजन्स में, जहां मॉइस्चर ज्यादा है, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कमेंट में मेंशन करिए कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म्स में नहीं, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, साइंस में आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी जो केमिकल वेदर, आपका जो क्लाइमेट होता है, वो डिटरमाइन करता है डिफरेंट डिफरेंट आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, उनको डिटरमाइन करता है। किसको, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। क्या होते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है, डिटरमाइन करता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, तो ऐसे प्रोसेसेस जो जियोलॉजी में आपके डिफरेंसेस लाएं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, इसके अलावा तो बहुत सारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आपके डिटरमाइन किए जाते हैं बाय क्लाइमेट। फॉर इंस्टेंस अगर आप बात करें आप फ्लूवियल प्रोसेसेस की, ठीक है, फ्लूवियल प्रोसेसेस, फ्लूवियल प्रोसेसेस मतलब ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर डिटरमाइंड बाय, है ना, जो रिवर्स अंडरटेक करती हैं, जैसे कि इरोजन, जैसे कि डिपोजिशन। सो फ्लूवियल प्रोसेसेस ज्यादा डोमिनेट कहाँ करते हैं, जहां मॉइस्ट क्लाइमेट होता है। ठीक है, जबकि अगर बात करें एओलियन प्रोसेसेस, एओलियन प्रोसेसेस जो विंड डिटरमाइंड होते हैं, these are very specific to all those areas which have dry climate। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, सो आई होप ये दोनों आपके अभी तक के तीन फैक्टर्स एकदम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स वील बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद।